Okay. Good morning, everyone. So we'll continue with the solid state, the topic. And yesterday we had seen some basic fundamentals of it. So solids are broadly classified into two types, crystalline solids and amorphous solids. So crystalline solids have definite arrangement in a regular manner. So definite arrangement, definite and repetitive arrangement. Repetitive arrangement of particles. Definite and repetitive arrangement of particles, and as we had seen, particles includes ions, atoms or molecules. So definite repetitive arrangement of particles will provide us a rigid three-dimensional arrangement of particle known as crystalline solids. Now crystalline solids are classified. कल हमने classification शुरू किया था. Classified into how many types? 4 types or 5 types? Into following types. देखते हैं. Into following 4 types. So first type कल हमने देखा था. What is that? Ionic crystals. Ionic crystals, in this constituent particles are, yes, constituent particles. ये बना कैसे है? जो particles है, these particles are ions, and ions are of two types as we know, cations and anions. So constituent particles are ions, they can be cations or anions, and ये हो गया इसका first point. Second point क्या पढ़ा था? The force of attraction between the two. What is that? Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction that holds these ions together. Then third is what? Yes, they are very hard and brittle. Brittle का meaning हमने समझ लिया था. That can be broken down with a very small pressure if applied, can be broken down easily. Although appears to be hard, but brittle as well as. जैसे ग्लास को हम देखते हैं, दिखता तो हार्ड है, लेकिन it is very brittle. ऐसा ही आयरन भी होता है, एक टाइप का पिग आयरन और कास्ट आयरन जिसे हम बोलते हैं. So that cast iron is also iron, but it is very brittle. So hard and brittle. और fourth point क्या देखा था हमने? They have high melting point. And और क्या देखा था? एक और point था very important. They are non-conductor. लेकिन condition है उसमें non-conductors in solid state. Correct है. In solid state they are non-conductor but can conduct, yes बोलेंगे, but can conduct in aqueous state, that is dissolved in water, और दूसरा क्या है? In molten state. In molten state or in aqueous state they can conduct electricity, otherwise in solid state they are non-conductors. अब इसके एग्जाम्पल बोल दो, क्या क्या है अपने पास में? NaCl, KCl तो है ये दो स्टैंडर्ड, और क्या है? K2SO4. एक और एग्जाम्पल CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड. तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट टाइप आयोनिक क्रिस्टल. सेकेंड भी कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था. व्हाट वाज दैट? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड.
कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल और सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? यस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या है फिर? यस, very hard and incompressible incompressible. Okay, why they are hard and incompressible? Because this covalent bond they form a network here, a covalent network. It forms a covalent network which creates a giant molecule, है ना? covalent network which create a giant molecule itself। यानी कल हमने देखा था कि कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो वो बनाते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो ये एक सिंगल कार्बन क्या हो रहा है? 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, एंड दिस विल क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ सच काइंड। ये देखिए नेटवर्क डेवलप होते जा रही है। अब एक एक कार्बन लेंगे आप, फिर इस कार्बन से और 4 नेटवर्क डेवलप होते जाएगी। सो दिस विल क्रिएट अ नेटवर्क ओवर हियर, and this is what we call as covalent network solid. All carbon atoms are bonded through covalent bond. What about melting point, boiling point? High melting point. Boiling point तो खैर नहीं रहेगा, they have high melting point. And और क्या बोला था? और what about conductivity? They are poor conductors. अब आपके टेक्स्ट बुक में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो ग्रेफाइट से रिलेटेड है और डायमंड से रिलेटेड है। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल बोल दो पहले, क्या क्या एग्जांपल है? यस, क्वार्ट्ज, डायमंड, बोरॉन, नाइट्राइड। हाँ जी, ये जो थोड़े से अलग हटके है ना, ये अच्छे से याद कर लेंगे। नाइट्राइड है ना, स्पेलिंग NITRIDE है, बोरॉन, नाइट्राइड, ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, all these are the covalent network solid. Now what is the difference between these two, diamond and graphite? डायमंड एंड ग्रेफाइट का डिफरेंस क्या क्या है? यस, डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो यहाँ पर ये ऐसा राइट नाउ मैं छोटा सा एक ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो ये हार्डेस्ट है और ये सॉफ्ट है। व्हाई दिस इज हार्ड, व्हाई दिस इज सॉफ्ट? हाँ, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे ना, तो सभी कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ग्रेफाइट भी कोवेलेंटली, डायमंड भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बट व्हाई इट बिकम्स हार्ड एंड दिस रिमेन सॉफ्ट? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते और फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, और डायमंड में क्या होता है देखिए, आप कैसे याद रखेंगे? डायमंड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये जैसे 4 डायमंड का नेटवर्क बन गया, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, each carbon is bonded to 3 other carbon atom which are also sp3 hybridized। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा sp3 ओवरलैप से, इतना तो हमें पता है। sp3 तो कार्बन कार्बन लिंकेज जो है ये कैसे बनेगा? sp3 ओवरलैप से, and that overlapping is going to be a very strong
मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। तो ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम पॉसिबल है, और मैक्सिमम पॉसिबल है इसीलिए जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। इंटर मॉलिक्यूलर, अब कैसा है कि ये जो डायमंड है ये एक क्रिस्टल है, इट इज ए क्रिस्टल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन एटम्स दे आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, and that is possible through sp3 overlap. Now what happens in graphite? In graphite carbon shows sp2 hybridization, और एक उसका जो ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल ये फ्री रहता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जब देखें कार्बन 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, इतना तो समझता है ना। एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली लिख दिया तो हमने, ये 3 आ गए, ये 4th हो गया, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। डायमंड में क्या होता है और ग्रेफाइट में क्या होगा? डायमंड में क्या होगा? ये sp3 चारों है, ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या होगा बोलेंगे जल्दी से? sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो दिस इज द डिफरेंस। बाकी कौन सा रह गया है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री 2pz इलेक्ट्रॉन फ्री है ये क्या करता है? पाई बॉन्ड क्रिएट करता है, और वो पाई बॉन्ड क्या करता है? ग्रेफाइट की लेयर को बाइंड करके रखता है। जैसे कल मैंने आपको ये डायग्राम में बताया था कि ग्रेफाइट की लेयर कैसे बनेगी और डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा पॉसिबल है, एक रिप्रेजेंटेशन, ये नेटवर्क बन रहा है जैसा हमने बनाया था। अब डायमंड में कैसा है कि हेक्सागोनल रिंग बनती है, वो हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे में फ्यूज, एक लेयर बना दिया, फिर ये दूसरी लेयर बन गई, ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स, और ये लेयर्स कैसे बॉन्डेड है? पाई बॉन्ड से है। और पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट्स आर सॉफ्टर एलिमेंट। तो वो जो हमको जो क्रिस्टल मिलेगा ग्रेफाइट का वो सॉफ्ट रहेगा, और इवन इतना सॉफ्ट होता है कि ग्रेफाइट को एज ए ल्यूब्रिकेंट भी मशीन्स में यूज करते हैं। Graphite can be used as a lubricant to avoid frictions or to reduce the friction. Machine parts move होते हैं, उसमें हम graphite ऐड करें तो graphite is so soft that they slide, their layer slide over the other. जैसे ही प्रेशर रखेंगे एक लेयर सामने जाएगी तो दूसरी पीछे आ जाएगी। तो ये जो स्लाइडिंग होता है ये पॉसिबल है ग्रेफाइट में। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अपनी लेयर बनाएगा, और दोनों लेयर को ज्वाइन करने के लिए बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड वीक है तो ये चला इधर, ये इधर चला, है ना। तो इस तरह से ये मूवमेंट रहेगा, तो ये स्लाइड होते रहेगा और ये सॉफ्ट रहेगा स्ट्रक्चर और ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द डिफरेंस वन शुड नो बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब एक बात और डिफरेंस की क्या आएगी इसमें, ये पॉइंट याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ग्रेफाइट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज फ्री, one half filled orbital is free, here no free orbital, so form a very giant network of covalent molecules, और पूरा डायमंड जो है वो एक क्रिस्टल, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मैं बोलूं तो एक मॉलिक्यूल यानी डायमंड, डायमंड इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि इसमें ये कार्बन कार्बन, ये तो एटम्स है, ये एटम्स जब ज्वाइन हो गए तो बना दिया डायमंड, जब ज्वाइन किया लेयर फॉर्म में तो बना दिया ग्रेफाइट। लेयर अटैच हो गई पाई बॉन्ड से
तो वो स्लाइड करेगी। सही है। अब यही फंडा जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसने बोला था, इसलिए मैंने कहा कि इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ये 2pz sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण। दैट्स वाई ग्रेफाइट, कल भी हमने बात की थी कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। इसीलिए हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, डायमंड्स के नहीं बनाते। वैसे डायमंड बहुत कॉस्टली है ना, अपन तो रिंग भी नहीं पहन सकते, है ना। अब आप लोग ने पहना होगा या फ्यूचर में पहनेंगे आप लोग डायमंड वाली या इसी थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर में, तब फिर डायमंड हम देखेंगे भी, है ना। बुलाना बस मुझे आप उसमें। हाँ सही है ना। अरे वो दिन आने ही वाला है ना, अब आज नहीं तो कल आएगा, यानी कल से मतलब है कुछ सालों बाद आएगा होपफुली। अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो बुला लेना मुझे। हाँ, कमिंग बैक टू ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो ग्रेफाइट डायमंड का डिफरेंस याद रहेगा हमको। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये हो गया आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड। अब थर्ड टाइप देखते हैं हम। थर्ड टाइप रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता लगता है, बस नाम ही काफी है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो थर्ड टाइप है ना, बी कोवेलेंट हो गया। थर्ड सी हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और बाद में सिर्फ इसको हम सॉलिड्स ही बोलने वाले हैं ना, जैसे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट नंबर 1 ये क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स। चलिए जी, मॉलिक्यूल्स। अब कुछ केस में मॉलिक्यूल्स और कुछ केस में सिंगल मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स भी पॉसिबल है। ये स्पेशली कहां दिखेंगे आपको? ये नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये मोनो एटॉमिक गैसेस है ना। एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जहां से फिर से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर व्हाट? वेयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और मैंने उसमें ये भी ऐड कर दिया है कि सब मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज नियॉन, एर्गॉन, दे कैन बी कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये मॉलिक्यूल्स में जैसे CH4 है, CO2 है, H2 है, N2 है, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये सॉलिड कब बनेंगे? जब हम, ये तो जैसे गैसियस फॉर्म में है, जब हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे तब। सॉलिडिफाई है ना, जब इसे हम सॉलिडिफाई करेंगे तब जाके वो सॉलिड्स बनेंगे, अदरवाइज दे रिमेन इन गैसियस स्टेट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, constituent particles are molecules. After solidification they provide molecular crystals or molecular solids. They also include monoatomic particles like neon or argon. यानी ये भी कैसे हैं? अब ये इनर्ट गैसेस हैं, ये तो इनर्ट गैसेस हैं, इसको भी जब कंडेंस करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, तो ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप नियॉन लाइट्स देखते हैं, है ना, फ्लैश लाइट्स नियॉन के देखते हैं हम लोग, तो फिर वो तो गैसियस फॉर्म में है, कैसे उसको कंट्रोल करते होंगे? तो उसको भी सॉलिडिफाई कर लेते हैं, तब बनते हैं वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ओके, तो बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इसका सेकेंड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? दिस इज समथिंग डिफरेंट हियर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ध्यान में रखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल?
इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे फर्स्ट होता है डाइपोल डाइपोल interaction. Dipole interaction. Dipole interaction we see in molecule like HCl, we see in molecule like H2O. Here we see dipole interaction. Dipole interaction यानी क्या हो गया कि ये एक मॉलिक्यूल, इसका अपना डाइपोल, ऐसा ही दूसरा HCl, उसका अपना डाइपोल। एक अब डाइपोल कैसे बनता है, ऐसे बनेगा डाइपोल, वाटर में कैसे बनेगा, है ना, तो ये इस तरह से बनेगा डाइपोल। तो ये एक मॉलिक्यूल, ऐसा दूसरा HCl इसके पास में आएगा। अब उसमें क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा, क्या दिख रहा है, क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेम कैन बी एक्सटेंडेड हियर फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जहां पर जो कंबाइनिंग एटम्स है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये मॉलिक्यूल्स को बांध के रखेगा। वैसे ये दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट। दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट है। लेकिन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस दोनों मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। आई एम यूजिंग द टर्म इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत सारे टाइप के हैं, 2-3 टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं, उसमें एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इज इट क्लियर? तो फिर से एक बार, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स, और सिंगल मोनो एटॉमिक molecules are also possible when they are solidified. Force of attraction between molecules is what we call intermolecular force of attraction, and that intermolecular force of attraction, one of it is dipole dipole interaction. दूसरा है dispersion force, और जिसको हम कहते हैं लंदन फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्सेस। क्या है, कोई बोलेगा डिस्पर्शन फोर्स? यस यस, दे आर टू बी कॉल्ड एज वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस, और मैंने आपको समझाया था 11th क्लास में, इसके पहले भी कभी बात हुई थी। वेंडरवॉल फोर्सेस आर सरफेस फोर्सेस, दे आर द सरफेस फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल, उसका सरफेस, दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों सरफेस आ गए यहाँ पर, तो ये सरफेस फोर्सेस आर व्हाट वी कॉल वेंडरवॉल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे मैंने बात किया था, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ताश के पत्ते एक के ऊपर एक रखते हैं हम, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो वेंडरवॉल फोर्सेस। सरफेस से जो जनरेट होने वाले वेरी वीक फोर्सेस, आप थोड़ा सा उस पे फोर्स लगाइए तो वो स्लाइड कर जाते हैं, क्योंकि फोर्सेस आर वीक। एक कार्ड है, सिंगल है, वो पूरा एक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए। दूसरा कार्ड है, वो भी सिंगल है, उसका अपना सरफेस है, इसका अपना सरफेस, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, जो फोर्स बन गया वो बना वेंडरवॉल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो ये इसके एग्जाम्पल बोल दो जो लिखे होंगे आपके पास में, क्या एग्जाम्पल है उसके? लंदन फोर्सेस के एग्जाम्पल हो गए ना मॉलिक्यूल में। H2 मॉलिक्यूल होगा, है ना, NH2 भी है, यस, H2 मॉलिक्यूल, ये तो समझ में आता है। हाइड्रोजन, NH3, अमोनिया में भी जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, दे हैव वीक फोर्सेस, H2 गैस, NH3, दे हैव
वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हो गया वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ? जी नहीं, हाइड्रोजन दूसरे किसी एटम से जब बॉन्डेड होता है, एंड दैट हैज टू बी अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे अब हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अटैच होगा तब बनेगा हाइड्रोजन। इसको क्यों नहीं बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Yeah, the difference in electronegativity is very low. The difference in electronegativity difference in electronegativity is very low. That's why cannot be considered as a hydrogen bonding. तो basically हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दिया है तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ जो दूसरा एटम बॉन्डेड रहेगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। The difference of electronegativity should be quite high, then only it creates hydrogen bonding, and this is supposed to be a stronger bonding as compared to London forces or dipole interaction। क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जस्ट लाइक डाइपोल यहाँ भी पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन वो पोलैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की पोलैरिटी रहेगी, है ना। दैट्स व्हाई दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? A bonding between hydrogen and highly electronegative element. Highly electronegative element and hydrogen can create intermolecular hydrogen bonding. This is a stronger hydrogen type of bonding. और इसमें क्या दिया है फिर? H2O, NH3, HF and so forth. Okay. तो तीन टाइप की बॉन्डिंग देखा बेटा हमने यहाँ पर। कौन सी देखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड में? पहला डाइपोल इंटरएक्शन, सेकंड डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स जिसको हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, और थर्ड आ गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस थ्री फोर्सेस exist between molecules. This forces exist between molecules and creates molecular crystals or solids. अब इसके बाकी पॉइंट्स रह गए ना, अभी तो दो ही पॉइंट हुए अपने डिस्कशन के। थर्ड पॉइंट जैसे हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या रहेगा ये? दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट, है ना, क्योंकि बॉन्डिंग वीक है इंटरमॉलिक्यूलर, तो दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स। और क्या रहेगा? अब जब सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ही वीक है, तो वो क्या है? जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, या अगर लिक्विड फॉर्म में रह गए तो बॉइल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द थर्ड टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सही है, आया ध्यान में? चलिए जी फोर्थ टाइप देखते हैं। और फोर्थ टाइप जो रहेगा, अभी टेम होने का है ना अपना? हाँ, टेम तो बाकी अभी काफी टाइम होगा। हाँ, कंडक्टिविटी क्या रहेगी? बोलिए। यस, पुअर, वेरी पुअर कंडक्टिविटी इज पुअर, है ना। तो पुअर कंडक्टिविटी, क्यों पुअर कंडक्टिविटी आ गई? जब डाइपोल है, क्या बोलते,
डिफरेंस इतना आ गया, तो पुअर कंडक्टिविटी क्यों आ गई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्टिंग फोर्स है, एटम्स तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। लो कंडक्टिविटी क्यों आ गई इसमें? क्योंकि ये एटम्स जो बॉन्डेड है दे आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके पहले हमने कोवेलेंट सॉलिड में देखा है दे आर पुअर कंडक्टर। तो मॉलिक्यूल तो कंडक्ट करते ही नहीं है, एटम्स कंडक्ट करते हैं, आयंस कंडक्ट करते हैं। तो अब फोर्थ टाइप पढ़ना है अपने को, एंड व्हाट इज दैट? मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या है जी? मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक क्रिस्टल्स और मेटालिक सॉलिड्स में बहुत इजी है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आयंस ही रहेंगे, मेटल एटम्स जिसको बोलेंगे, मेटल एटम्स, और बाद में हम देखेंगे कि उसको हम आयंस बोलेंगे और एक टर्म यूज करेंगे कर्नल करके, कर्नल कर्नल। ओके, तो मेटालिक सॉलिड्स constituent particles are metal atoms or ions or to be called as kernels. Kernels actually positively charged जो होते हैं ना मेटल एटम्स, उसको बोलते हैं। तो मेटल एटम्स आर द constituent particles। बट कैसे बनता है मेटल, अगर उसको समझेंगे हम, तो जैसे एक मेटल क्रिस्टल को ड्रॉ कर ले यहाँ पर शॉर्ट में, 4 बनाते हैं, 3 लेयर कर देते हैं, तो हाँ जी, ये सब मेटल कैटायंस हो गए। मेटल क्रिस्टल में किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स है। हाँ जी, अब ये मेटल क्रिस्टल में दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री, मोबाइल, और एक टर्म यूज करेंगे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। दे आर फ्री, मोबाइल और डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेटल कैटायंस है दे आर स्टेशनरी, स्टेशनरी मेटल कैटायंस। सो मेटल क्रिस्टल में होता क्या है कि इट इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन where metal cations are placed at fixed position. Electrons are not fixed, they are free to move within this metal crystal. They are mobile to be moved within this crystal. They are delocalized electron. Means ऐसा ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। इट कैन क्रिएट बॉन्ड विद दिस, इट कैन क्रिएट बॉन्ड दिस, और अगर ये पास में है तो इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा वो। कोई और इलेक्ट्रॉन, कोई और कैटायन आ गया तो उसके साथ भी बॉन्ड पॉसिबल है। सो दिस इलेक्ट्रॉन दे आर delocalized, they can move within this metal crystal, but metal cations, इसलिए मैंने ये वर्ड लिख दिया, they are stationary, they are fixed at their position. And this force of attraction between metal cations and electron will create a metallic bond. Metallic bond is what? A force of attraction. Metallic bond is a force of attraction between metal cation and delocalized electron is what we call as metallic bond. तो constituent particles मिल गए आपको, bonding मिल गया, metallic bond आ गया उसमें, और ये जो delocalized electron है they play a very important role in the characteristic properties of metals. तो क्या क्या characteristic properties है metal की? Following properties. Yes, आपको सबको पता है, तो बोल देंगे जरा मुझे। दे आर malleable,
malleable, they are ductile, good conductor of heat and electricity, good conductors. Malleable means what? They can be converted into thin sheet. They can be converted into thin sheet, that is malleability. Ductile यानी thin wire में convert हो जाना, that is ductility. Or good conductors of heat and electricity, that we know. And this is possible. Why this is possible? Good conductor of, yeah, all the three properties rather. This is delocalized electron. जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो आप अगर यहाँ पर एक कॉर्नर पे इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये कॉर्नर का इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर लेवल पे जाएगा और वो पूरे मेटल क्रिस्टल में फिर घूमते हुए हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। सही है? तो एक कॉर्नर पे भी हीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द एंटायर मेटल पीस इटसेल्फ गेट वार्म्ड। क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, तो इसीलिए हीट का गुड कंडक्टर आ गया। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समझ ही रहा है यहाँ पर कि जब फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मिला करंट तो चला वो पूरे मेटल क्रिस्टल में जहां भी आप हाथ लगाएंगे तो फिर करंट लगेगा। ठीक है? डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, व्हाई दिस टू प्रॉपर्टीज आर पॉसिबल? ये क्यों पॉसिबल है मेटल के साथ में, बाकी सॉलिड्स के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है? आयोनिक के साथ में क्यों नहीं पॉसिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? बोलते जाएंगे, जिसको जो जो समझता है बोलते जाना ना, किसी को एक एक को थोड़ी ना पूछेंगे, है ना? टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, इसको खत्म करना है अभी। अब क्या हो रहा है कि ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड जो बनाएगा वो बॉन्ड भी डीलोकलाइज टाइप बॉन्ड रहेगा। फिक्स बॉन्ड है क्या? आयोनिक में एकदम फिक्स बॉन्ड था, एक सोडियम एक क्लोराइड आयन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, फिक्स बॉन्ड है। आपने अगर जैसे यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का भी अगर हम क्रिस्टल बना ले तो क्लोराइड को स्मॉलर, क्लोराइड बिगर होना चाहिए। एनायन है ना, उसका साइज बिगर होता है, कैटायन का साइज स्मॉल होता है। तो ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, हाँ जी। तो सोडियम और क्लोराइड में यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज, जैसा चार्ज यहां पर है। ये सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोराइड है नेगेटिव चार्ज। यस, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोला है हमने। सेम बॉन्ड वैसा यहां पर भी दिखता है, लेकिन व्हाई दिस आयोनिक सॉलिड्स cannot be malleable और डक्टाइल? यस, यहाँ बॉन्ड क्या है, प्रेशर अप्लाई करेंगे जब आप, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर, यहाँ क्या है, ब्रेक नहीं होंगे। ये जो कैटायन की लेयर है ना, ये कैटायन की लेयर स्लाइड हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ जाएंगे। तो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता मेटल में। इसीलिए आपने हैमर किया, इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो लेयर है ये स्लाइड हो जाएगी और स्लाइड होने के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ जाएंगे, तो अट्रैक्शन बना रहेगा। अट्रैक्शन बना रहेगा तो यहाँ पर कभी आपको ब्रेकिंग नहीं दिखेगा। वी कैन हैव थिन शीट और थिन वायर व्हेन वी हैमर और व्हेन वी पुट सम प्रेशर ऑन मेटालिक क्रिस्टल। ऑन द अदर हैंड आयोनिक क्रिस्टल, इस पे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या ये स्लाइड तो होगा लेकिन टूट जाएगा। और स्लाइड तो होगा, जैसे आपने NaCl लिया और उस पे हैमर किया तो वो क्रश हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उस
को आप कभी फिर से बॉन्डिंग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है इसमें, यहाँ बॉन्ड फ्रैक्चर नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। और सर आप सिगारेट से बोला नहीं कुछ। ओके चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटालिक सॉलिड्स। तो चारों टाइप हो गए आज अपने, एकदम अच्छे से हो गए, याद रहेंगे आप सबको। आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत सिंपल तरीके से दिया है ये टेबुलर फॉर्म, इसको चारों को आप याद कर लीजिए। अभी कैसा है, नॉर्मली होता क्या था कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस आता है, अब वो कट कर दिया आपके लिए, तो डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चारों में से कोई भी दो का आ जाए, स्पेशली जैसे आयोनिक और मेटालिक में होगा, आयोनिक या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होगा, तो वो डिफरेंस यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है। कल कंटिन्यू करते हैं, सी यू टुमारो। सर आप मीटिंग तो तभी